Now students, here in this video we'll discuss about mathematical library methods. So now let's first discuss what is a method. Method is actually named part of code. Method actually एक program का वो part होता है that does a specific task and it can be invoked as and when required. So यहाँ पे जो methods होते हैं इसके two parts होते हैं. Like two types of methods are there. One is user defined method. According to the requirement of the program, according to what is needed, यूजर जो अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं दैट इज नोन एज यूजर डिफाइंड मेथड्स. और जावा ने कुछ इनबिल्ट मेथड यूज किए हैं, बनाए हैं, जो कि उन्होंने प्रोवाइड किए जावा प्रोग्रामर्स को इन द फॉर्म ऑफ पैकेज. तो वो होते हैं हमारे लाइब्रेरी मेथड्स. तो यहाँ इस वीडियो में विल डिस्क्राइब अबाउट दीज लाइब्रेरी मेथड्स. So one of the packages that is created by Java developers for in the classes is java.lang. It includes various classes and here we'll study about a class math class. यहाँ पे हम math class के बारे में study करेंगे. इसको हम maths library maths library. तो there are several methods in math class that are used in expressions. So now we'll study a list of methods that comes under math class. So now here are the list of methods that comes under a maths class. पूरे नहीं है ये methods, नहीं आ पाए इस स्क्रीन में. Later on we'll add that. So now number one is math.power. तो इसको लिखेंगे हम लोग math.power. इसके दो expressions होंगे. Let's suppose x and y अगर expression है. So what it will do, it will evaluate this x to the power y. So now this is generally the base and this is the exponent. So what it does, actually the power is evaluated here, base and exponent is given. So now let us come to the syntax of this. Its return type is double. इसका return type double होगा. And then इसके arguments जो होंगे ये भी double type के, इनका भी type जो होगा ये double होगा. Double and double. So now let's suppose take an example. If we have to evaluate math dot power, अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ double a is equals to math dot power 2, 3. So a result will be 2 की power 3, 2 to the 4, 2 to the 8. So but 8 आया हमारे evaluation but in the form of double. So the value of a will be 8.0. So it is how we evaluate and how the function returns the value result. Okay. So now next is math.sqrt function. Math.sqrt short form है square root का. So again it will take argument is double और इसका return type भी हमारा double होगा. Double y method evaluate. So the square root of this value is evaluated. The argument, the data type of argument is double and the return type is again double. For example, if you want to evaluate math.sqrt अगर मैं 64 का निकालूं तो इसकी वैल्यू आएगी, अगर मैं डबल y is equals to लिखूं तो y की वैल्यू आएगी 8.0. This is how this math.sqrt function works. Now let us move to next, that is cube root. Cube root भी सेम ऐसा ही है. स्क्वायर रूट की जगह मैं यहाँ पे CBRT लगा देती हूँ. CBRT cube root. Again it takes argument इसका डबल टाइप का रहेगा. So अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 8 तो इसकी वैल्यू आएगी 2.0. इसका argument डबल टाइप, रिटर्न टाइप इज अगेन डबल. Now here we'll discuss about the function math.ceil. इसके रिटर्न टाइप होता है, इसका आर्ग्यूमेंट होता है डबल, आर्ग्यूमेंट का टाइप होता है डबल x एंड इसका रिटर्न टाइप इज अगेन डबल. इसी के साथ साथ हम एक और की स्टडी करेंगे दैट इज math.flow.
इसका आर्ग्यूमेंट डबल टाइप का होता है एंड इसका रिटर्न टाइप भी डबल होता है. नाउ दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. 2 मार्क्स का ये क्लास 10th में क्वेश्चन आता है, आउटपुट की फॉर्म में, किसी फॉर्म में आ सकता है. सो नाउ व्हाट विल डू, ये सील और फ्लोर आप देखिए, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो सील और ये फ्लोर, सील अप वैल्यू, फ्लोर लो वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डबल y इज इक्वल्स टू मैथ डॉट सील और मैंने यहाँ पे लिखा 16.1 सी, तो 16.1 की जो अप वैल्यू होगी दैट इज 17. तो द वैल्यू ऑफ y विल बी 17.0. यहाँ पे 17.0 आएगी y की वैल्यू. एंड यहीं पे अगर मैं सी की जगह फ्लोर कर देती हूँ, फ्लोर, इसका भी आर्ग्यूमेंट इट इज ऑफ डबल टाइप और इसका रिटर्न टाइप भी डबल होता है. सो अगर मैं यहाँ पे फ्लोर कर देती हूँ तो 16.1 की फ्लोर वैल्यू, डाउन वैल्यू, इट विल बिकम 16.0. Now see, don't get confused with जो हम राउंड फिगर करते हैं कि 16.5 होगा तो उसको 17 कर देंगे, 16.1 होगा तो उसको 16 कर देंगे. नो, डिस्पाइट ऑफ वेदर द फ्रैक्शनल पार्ट इज above than 5.5 और बिलो दैट, ये कॉन्सेप्ट हम ही लेंगे. बस 16.1 है और इसका अगर हम सी निकालें, सी वैल्यू ले रहे हैं फंक्शन में, सो देन सी विल बी 17.0. एंड इवन इफ अगर मैं यहाँ पे 16.9 ले रही हूँ और इसका मैथ डॉट फ्लोर लिख रही हूँ, सी 16.9 है बट बिकॉज द फंक्शन इज द मेथड इज फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर मेथड है, तो आई टेक डाउन वैल्यू, सो द रिजल्ट विल बी 16.0. ये बहुत ध्यान रखना है. अब यही आप नेगेटिव में भी लेंगे, सो द क्वेश्चन विल कम इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट और ये डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है. सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स. ये जो लिस्ट है इनमें से भी आ जाते हैं बट दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, विल कम. सो ओके नाउ, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन सी एंड फ्लोर इज कि अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ मैथ डॉट सी, अगर ये वैल्यू अब -16.1 है, ठीक है, और वन मोर थिंग इज मैथ डॉट फ्लो और ये वैल्यू -16.9 है. अब यहीं पे ध्यान देना है इसको कि अब ये अगर मैं डबल y और यहाँ पे भी डबल y देखूँ यहाँ पे, तो सी, अब ये जो -16.1 है इसकी सी वैल्यू आएगी -16.0, तो y की वैल्यू होगी -16.0. एंड यहाँ पे फ्लोर है पर माइनस में है तो इसकी वैल्यू -17.0. तो आउटपुट की फॉर्म में टू क्रिएट कंफ्यूजन sometimes these type of integer negative values may come. So we have to keep track of this thing whether the value is, if the value is in negative, then the value, relatively we have to find out the value of the return, like the variable in which the value gets stored. So this is the main point to think over. So now let us move to a round function. अब round वाले में concept हमारा हो जाता है जो हम use करते हैं 0.5 या 0.5 से ग्रेटर होगा तो we'll take our value. Okay, so now have a look over it. So now here we'll discuss about mapped out round function. अब इसमें हमारे पास 2 variations हैं. If the return type is, sorry, if the argument is double, अगर जो argument मैंने दिया है अगर वो double type का है तो इसका return जो होगा वो long type का होगा. ये आपको ध्यान रखना है. Now other thing is if I write math dot round और अगर ये float में है, अगर रिटर्न, अगर आर्ग्यूमेंट्स मेरे फ्लोट में है तो इसका रिटर्न टाइप इंट होगा. ओके, जैसे मैंने लिखा है मैथ डॉट राउंड 16.6, तो इसकी वैल्यू जो आएगी, इसका जो आउटपुट आएगा, मैं वही में रखती हूँ, इसका आउटपुट आएगा 17. फ्लोट में है तो वैल्यू मेरी इंट वैल्यू में आएगी. और अगर ये 16.2 होता तो वैल्यू आएगी 16. ये वही सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है दैट वी अप्लाई इन आवर मैथमेटिक्स, जो अब तक हम अप्लाई करते आए. सो दिस इज राउंड. सो आवर नेक्स्ट मेथड इज मैथ डॉट abs. अब इसके आर्ग्यूमेंट इंट टाइप में हो सकते हैं, इसके आर्ग्यूमेंट लॉन्ग में हो सकता है,
इसका आर्ग्यूमेंट फ्लोट में हो सकता है, इसका आर्ग्यूमेंट डबल में हो सकता है। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है जो हम जनरली मैथ्स में यूज करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू, इफ द वैल्यू इज इन, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है आंसर विल बी इन पॉजिटिव, मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव की पॉजिटिव होती है। बट इफ द आर्ग्यूमेंट इज इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव, अगर मेरा -16.0 है तो इसका आउटपुट आएगा 16.0। मेरा अगर वैल्यू है -2 तो आंसर आएगा मेरा 2, +2 का तो 2 ही आएगा। सो नाउ व्हाट इट विल डू, अगर मेरे आर्ग्यूमेंट इंट फॉर्म में है तो मेरा रिटर्न टाइप इंट होगा। इफ आर्ग्यूमेंट इज इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग तो मेरा रिटर्न टाइप लॉन्ग होगा। इफ फ्लोट देन रिटर्न टाइप फ्लोट होगा। इफ डबल देन रिटर्न टाइप डबल। सो नाउ we'll study about the important method that is math.max। तो इसके साथ साथ ही एक और इसी की तरह का मेथड है maths.min। जैसे नेम इंडिकेट कर रहे हैं, इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स होंगे एंड among those 2 arguments we have to find out the first one method, it will find maximum among those 2 and minimum 2 में से जो भी आर्ग्यूमेंट्स है मेरा x और y उसमें से मेरा मिनिमम निकालेगा। ओके, सो नाउ यहाँ पे there are 2 arguments, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे y में रिटर्न हो जाएगी, अगेन सेम यहाँ पे y में रिटर्न हो जाएगी। अब अगर हम आर्ग्यूमेंट्स के डेटा टाइप और रिटर्न के डेटा टाइप अगर देखें तो इफ द आर्ग्यूमेंट अगर ये इंट फॉर्म में हुए, इंट फॉर्म में हुए तो मेरा जो रिटर्न टाइप होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंट। अगर ये लॉन्ग में हुए, लॉन्ग तो मेरा जो रिटर्न टाइप होगा ये मेरा होगा लॉन्ग। लाइकवाइज अगर फ्लोट हुआ, ये दोनों के दोनों फ्लोट हुए तो रिटर्न टाइप फ्लोट होगा, और अगर ये डबल हुए तो रिटर्न टाइप मेरा डबल। ठीक है, so if you find out the maximum value and the same, यही जो डेटा टाइप के आर्ग्यूमेंट्स की डेटा टाइप एंड रिटर्न के डेटा टाइप्स होंगे सेम ये अप्लाई होंगे मिनिमम में। इफ द आर्ग्यूमेंट्स आर इन इंटीजर फॉर्म देन द रिटर्न टाइप विल बी इन इंटीजर, and likewise for float it is float, for double it is double, for long it is long. So now our next is random। अब देखो ये math.random फंक्शन क्या होता है, इसके आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते कोई। अब ये थोड़ा सा देखने वाला है, थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि एक्चुअली व्हाट इट डज। सो रैंडम मतलब रैंडम का जनरली अगर मीनिंग देखें तो कोई भी, लाइक विदाउट एनी सीक्वेंस, इट इज रैंडम। तो इसका रिटर्न टाइप होता है फ्लोट, सॉरी डबल, इसका रिटर्न टाइप होता है डबल। तो ये रैंडम क्या करता है, ये 0.0 से लेके 1.1 इसके बीच में कोई भी नंबर आप जितनी बार इसका आउटपुट देखेंगे उतनी बार कोई भी एक वैल्यू 0.0 से लेके 1.0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू आपको आउटपुट देगा। जितनी बार भी आप इसको रन कराएंगे उतनी बार विल गेट डिफरेंट डबल वैल्यूज। 0.0 से लेके 1.0 के बीच में कोई भी वैल्यू 0.1 2 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट टाइम आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे 0.1 3 4 5 9 2 4 5 कोई वैल्यू जनरेट कर देगा। So from 0.0 to 1.0 कोई भी डबल वैल्यू जनरेट करेगा। Now we come to the next function that is math.py। पाई हमें पता है पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, हम जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम 3.14 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज कांस्टेंट वैल्यू है। whenever we जब भी हम इसको math.py अगर लिखेंगे math.py कोई भी पैरेंथेसिस नहीं होंगे, math.py विल राइट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब भी हम लिखेंगे इसकी वैल्यू आएगी 3.14159265 जो भी वैल्यू होती है वो ये वैल्यू जनरेट हो जाएगी। सो दीज ऑल आर अबाउट द फंक्शन दैट वी यूज अंडर क्लास मैथ। नाउ क्लास 10th में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये भी आता है जिसमें वी आर प्रोवाइडेड विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन हमें कोई गिवन होगी एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट हाउ विल राइट इट इन जावा। तो इट इज़ वेरी सिंपल, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है a एस्टेरिक एंड देन x एस्टेरिक x, यहाँ पे मैंने a इंटू x लिख दिया प्लस b एस्टेरिक x प्लस c। इधर आई राइट लाइक दिस और y is equals to here, or I may write like a
asterisk math dot power. So class 10th में two marks का एक question आता है in which we are provided with mathematical expression and we have to represent how we'll write it in Java. For example, अगर मुझे बोला गया y is equals to ax square plus bx plus c, how I'll write it? तो मैं इसको लिखूंगी y is equals to a asterisk x plus b asterisk x plus c. और मैं मैथ्स क्लास का भी फंक्शन यूज़ कर सकती हूँ और आई राइट लाइक दिस, आई मे राइट लाइक दिस a इंटू, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए आई राइट मैथ डॉट पावर एंड देन एक्स कॉमा 2 प्लस बी एस्टेरिक एक्स प्लस सी. नाउ अगर मुझे एक और एक्सप्रेशन ऐसे दे दिया गया है कि x इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेट अस सपोज ये दिया है. So I will write like this is equals to math dot, I will use sqrt, मैंने sqrt function का use किया and then I will use math dot power a comma 2 plus math dot power b comma 2 और I will write like this, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ math dot sqrt मैंने लिखा and then इसमें मैं I will write like this x is equals to math dot sqrt और विद इन ब्रैकेट मैं यहाँ पे a एस्टेरिक a प्लस b एस्टेरिक b यूज ठीक है. आई मे यूज मैथ क्लास और आई मे यूज लाइक दिस. अगर हाँ 2 से ज़्यादा होते हैं 3 या 4 होते हैं तो फॉर नो श्योर वी हैव टू यूज मैथ डॉट पावर. तो यहाँ पे x a इंटू a b भी लिख सकते हैं अगर मेरे पास 2 स्क्वायर करना. So these all are the things and let us suppose हमें triangles की 3 sides दी गई हैं. I'm going to find out the area. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन मुझे दिया गया है तो अगर 3 sides दी गई हैं ए बी सी दी गई हैं ए बी सी एंड मुझे इसका एरिया निकालना है तो फर्स्ट तो आई विल फाइंड आउट एज प्रूफ में होगा. ये मैंने इसको निकाल दिया है a प्लस बी प्लस सी बाई 2. So I'll find out the semi perimeter and then after that the evaluation of area will be, अब ये क्या होता है math dot sqrt and then ये जो s की वैल्यू निकल गई है s एस्टेरिक s minus a एस्टेरिक s minus b एस्टेरिक s minus c. So accordingly I use the functions and then I implement all this according in our expression according to the given condition. So students, these all were the methods under math class. So these all are the methods under math class and under java.lang package. So इस तरह से ये पूरी वीडियो ने एक हमारा चैप्टर लाइब्रेरी मेथड्स कंप्लीट किया. आई होप ये आपको वीडियो आपकी प्रॉब्लम्स आपके जितने भी डाउट्स थे रिगार्डिंग इनबिल्ट फंक्शंस तो ये क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू.